students, today we are discussing about the course structure of physics of class 10. ठीक है, so course structure, okay, class 10 subject physics. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम्स होता है कि फिजिक्स साइंस का जो बुक्स होता है, जो 10 क्लास का बुक्स है, उसमें फिजिक्स का कौन सा पोर्शन है, केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर्स में इंक्लूडेड है और बायो कौन सा चैप्टर में इंक्लूड है, उनको पता नहीं है. ठीक है, और तो ये सबसे पहले हम लोग को जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग को फिजिक्स में आता है, बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ फिजिक्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10 साइंस. especially I am discussing about the syllabus of physics. So total number of chapter is 5. Total number of chapters, total number of chapters is 5. Okay, as far as the structures और the topics जो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो चैप्टर्स है, पहले तो हम लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमनली नोन एज लाइट. देन current electricity, and then magnetic effect of current and the sources of energy. ठीक है, so in chapter of chapter 10, chapter 10, chapter 11, chapter 12, 13 and 14, I am just writing the chapters number 10, chapter 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 and 14 belongs to physics. Okay, so in chapter 10 what is given? Chapter 10, chapter number 10, optics, that is reflection and refraction of light. Reflection and refraction is only given in your chapters. The name is reflection and refraction, but basically we dealt with reflection of what? Reflection of sound भी होता है, तो we just have to be mentioned reflection and refraction of light. Reflection and refraction of light. Okay, and optics, here is the one word, means optics is the branch of physics which deals with study of light. Optics is the branch of physics which deals with study of light. So optics is the technical term or technical word, but in common practices optics is commonly known as, or in common English, optics is known as light. So in optics we have to deal with reflections and refractions. So reflection takes place in a mirror and refraction in case of lenses. लेंस में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है इफ़ वन ऑफ द सरफेस, यदि लेंस के एक सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे, ठीक है, पेंट कर देंगे, देन लेंस ऑल्सो बिहेव्स एज अ मिरर. ओके, सो व्हाट इज द कंटेंट्स वी डिस्कस later, but now, as of now, chapter 10 is the optics, that is reflection and refractions. Next is chapter
11. Chapter 11. Chapter 11 is human eye and colorful world. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ह्यूमन आई दैट इज द, इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, कंस्ट्रक्शंस ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, ओके, एंड हाउ वी विजुअलाइज द colorful world with the help of eye. So human eye, it is an excellent, it is a natural camera, or it is not a man-made camera, it is a natural camera. So we have to study the human eye, and there is some defects, like some of the person is not able to see distant objects, some of the person were not able to see nearby objects, and the many of them were not able to see nearby as well as far off objects. So there is some type of, that is different type of defects, like far-sightedness, near-sightedness, astigmatism and presbyopia. These are the four common defects of vision which is arises in the human eye. Okay, and later on we also discussing about the, when the white light is passing through a prism. When the white light is passing through a prism, it gets dispersed into 7 different colors. Why dispersion takes place, and who is the discoverer who told that when the white light is passing through a prism, white gets separated into 7 different colors. So human eye and colorful world, this is included in the chapters. We call it the optics, we call it in the light. And in chapter number 12, next is chapter 12. Chapter 12, electricity. Okay, electricity, you may also call it current electricity. Current electricity. Okay, current electricity we also commonly dealt with, that is voltage, potential difference. Okay, so you can also call it the electricity, or you may also call it current electricity. Okay, in this, how the current is flowing through a conductor or metal, or what are the why the metal are the good conductor of electricity, why are the non-metals are that is a bad conductor of electricity, and how the electrons is responsible, कैसे electron responsible है for the flowing of current by applying potential difference. Okay, so in all this we discussing about the electricity. इस सब में हम लोग को क्या बात करना है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैसे फ्लो करता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है, हाउ यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, एंड हाउ जब किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी मेटल वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, एंड ओम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, and the potential difference. Okay, and the various terms, what is resistivity, what is conductivity, like that. Okay, next is I am moving towards the chapter number 13. Chapter number 13 is magnetic effect of current. Magnetic effects of currents. Magnetic effect of current, when the current is flowing through a conductor, magnetic field is creating around the conductor.
So how this magnetic effect takes place, and इसमें हम ये भी इंक्लूड कर देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम ये बात करेंगे हम लोग कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में जो लोग जाते हैं उन अपने हेयर स्ट्रेटनर, बाल को सीधा कराने के लिए, बाल को कर्ल कराने के लिए जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस ऑल दिस डिवाइसेस आर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज़ द जूल्स लॉ, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू स्टडीड द इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या बात करना है, जूल्स लॉ के बारे में बात करना है। और जूल्स लॉ क्या बोलता है, जूल्स लॉ दैट इज़ द हाउ द current carrying conductor heat, how the heat is produced in a current carrying conductor, okay. And the magnetic effect of current, it is the most important one. And in class 12 all these 4 chapter we have to study in depth analysis, ठीक है। हम लोग को ये जो चारों चैप्टर है 12 में जब जाओगे, जो 9 का जो सिलेबस हम बताए हैं, वो 9 का सिलेबस वो 11 में पढ़ना है, उसको डेप्थ में पढ़ना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जो क्लास 10 का जो सिलेबस है वो इसी को हम लोग को 12 में पढ़ना है। कुछ और चैप्टर्स इसमें इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन ये सब भी चैप्टर्स उसमें हम लोग ऑप्टिक्स, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चैप्टर्स और इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और द लास्ट चैप्टर बट नॉट द लिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ नॉट द लिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड द चैप्टर नंबर 14, chapter number 14, chapter number 14 is sources of energy, ठीक है। chapter number, so how many chapters we have to study in class 10 as far as our syllabus is concerned. So there are I recap it, इसको हम रिपीट कर देते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज़ क्लास 10 का हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट फिजिक्स का बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज़ 5, चैप्टर 10, 11, 12, 13 एंड 14 बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर 10 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स इज़ द टेक्निकल वर्ड, मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। यदि तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, तो बोलेंगे स्टडी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट इज़ द कॉमन इंग्लिश टर्म, ऑप्टिक्स इज़ द दैट इज़ कॉल्ड द टेक्निकल वर्ड और साइंटिफिक वर्ड टू यूज़ लाइट। तो ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। फिर चैप्टर 11 में हम लोग को, तो जैसा कि बताया, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है हम लोग को, मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, इट्स यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, हाउ द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर। यदि हम लोग मिरर में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, मिरर में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे तो इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है, वो रे ऑफ लाइट का जो फॉर्मेशन है वो 2 रे के इंटरसेक्शन के कारण फॉर्म होता है। तो यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करेंगे तो इमेज का पोजीशन भी ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला दैट इज़ 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, मिरर फार्मूला, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज f इक्वल टू r/2 और r इक्वल्स टू 2f, वेयर दिस इज u इज कॉल्ड object distance, v is called image distance, small f is called focal length, and that is r is called the radius of curvature. ये आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वो चैप्टर 10 से हमारा स्टार्ट होगा क्लास 10 के लिए।
हमारा जो भी वीडियो होगा 9 का होगा, 10 का होगा, 11 का होगा, 12 का होगा और BSc तक का वीडियो होगा। तो अभी हम 9 का वीडियो में यही कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। चैप्टर 10 जो सेकेंड वीडियो है मेरा क्लास 10 के लिए, उसमें हम कोर्स स्ट्रक्चर मतलब सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर्स फिजिक्स से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर बायो से रिलेटेड है। इसलिए पहले हम स्टार्ट करने के पहले चैप्टर्स में हम लोग जाएँ, थ्योरी को स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, उसके पहले ही हम बता दे रहे हैं कि कौन सा चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स में के लिए है और कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री और बायो। तो हम सिंस आई एम ए मैन ऑफ फिजिक्स, तो हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो भी हम लोग u के बारे में बात करेंगे तो समझना है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v के बारे में बात करेंगे तो इमेज डिस्टेंस, f इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ एंड r इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले ये सारा टर्म बता देंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर में कौन सा सरफेस सिल्वर्ड होता है, पॉलिश्ड होता है, पेंट होता है, कॉन्वेक्स में कौन सा सरफेस पेंट होता है, प्लेन मिरर का बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन मतलब कि लेंस, स्फेरिकल लेंसेस, लेंस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, विच लेंस इज कन्वर्जिंग, विच लेंस इज डाइवर्जिंग। तो हम लोग रे डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शंस का बात हो गया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में बात करेंगे आई का कंस्ट्रक्शंस क्या है, आई में जो 3 लेयर होता है, ठीक है, स्क्लेरोटिक, कोरोइड और रेटिना, दे आर द 3 लेयर्स इन द ह्यूमन आई। एंड देयर इज सम लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स इज अराइजेस विच इज़ कॉल्ड द फार साइटेडनेस होता है, नियर साइटेडनेस होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है और प्रेस बायोपिया होता है। ये ह्यूमन आई में बात करेंगे, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स में बारे में बात करेंगे। कलरफुल वर्ल्ड में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग डिस्पर्सन का बात करेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है, जब किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को हम लोग जब क्रॉस कराते हैं, वाइट लाइट जब उसमें से पास ऑन होता है तो वाइट लाइट को प्रिज्म से पास होने के बाद वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। उसी घटना को, उसी फेनोमेनन को, उसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन होता क्यों है ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी किसी करंट, किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो करता है या न्यूट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं फ्लो करता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस 4, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ओके, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। एज़ पर योर बुक्स और एज़ पर द NCERT चैप्टर्स इट इज़ रिटन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और यू मे ऑल्सो कॉल इट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम हम लोग जान रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करने के कारण, ठीक है, करंट फ्लो करने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है तो इसमें यदि करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में सबसे पहले ओर्स्टीड ने बताया था। करंट के बारे में और हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, इसी में पढ़ेंगे हम लोग जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू यदि करंट फ्लो होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है, इसके बारे में, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। 12 क्लास में हम लोग को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब हम लोगों के लिए एनर्जी का क्या क्या सोर्स है। जैसे सनलाइट, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में यदि कोई एनर्जी यूज होगा तो दैट इज़ कॉल्ड द सनलाइट बिकॉज इट इज़ द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सो वी हैव टू डिस्कसिंग एंड हाउ द दैट इज द फॉसिल्स फ्यूल दैट इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल। तो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग दो क्लास में बांटेंगे, दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, री मतलब क्या होता है? दोबारा। री मतलब दोबारा, उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सनलाइट आज हम लोग यूज़ किए, फिर कल सूरज निकलेगा, फिर कल सनलाइट आएगा, सनराइज़ होगा, तो फिर हम लोग उसको एनर्जी को हम लोग न्यू कर सकते हैं, उसको फिर हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कोल हो गया, फॉसिल्स फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, कैरोसिन, उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? न्यूमेरिकल से डरते हैं। ठीक है, यदि फिजिक्स में तुम न्यूमेरिकल और डेटा को एनालिसिस नहीं करोगे, फॉर्मूला को एनालिसिस नहीं करोगे, तो यू कैनॉट फील द ब्यूटी ऑफ साइंस और ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के ब्यूटी को परसीव करने के लिए, फील करने के लिए, वी मस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज़ गिवन इन योर बुक्स। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग को जो क्लास में, जो बुक्स में हम लोग को 4 तरह का न्यूमेरिकल्स दिया है बुक्स में। टाइप 1 एक्टिविटी क्वेश्चंस, एक्टिविटी 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ये इसको बोलते हैं 4 टाइप्स क्वेश्चंस हम लोग को दिया हुआ है। पहला एक्टिविटी क्वेश्चंस। एक्टिविटी क्वेश्चंस को यदि हम लोग देखेंगे, लिसन केयरफुली, एक्टिविटी क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं, तो जैसे मान लो हम लोग चैप्टर नंबर 10 का बात कर रहे हैं, तो उसमें तुम देखोगे एक्टिविटी क्वेश्चंस कैसे दिया हुआ, इस तरह का नोटेशन में दिया हुआ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। ठीक है, दीज आर द एक्टिविटी क्वेश्चंस। फिर हम लोग का है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट में तुमको वो चैप्टर का वो क्वेश्चंस दिया हुआ है, थ्योरी भी है, जैसे व्हाट इज़ ओम्स लॉ, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। थर्ड इज solved examples, this is the third one, and fourth is the exercise or additional exercise is also given. Additional exercise सभी चैप्टर्स में नहीं है। ठीक है, तो रेड एक्टिविटी क्वेश्चंस में जो हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये एक टाइप्स हो गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 टाइप्स का एक्टिविटी क्वेश्चंस तुम्हारे चैप्टर्स फिजिक्स में दिया हुआ है, फिजिक्स बुक में। एक है एक्टिविटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। कुछ चैप्टर्स में एक्सरसाइज सिर्फ है, कुछ चैप्टर्स में एक्सरसाइज भी है प्लस एडिशनल एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, डेफिनेशन पढ़ लेने से, थ्योरी और चैप्टर्स और डेफिनेशन पढ़ लेने से हम लोग पूरी तरह से फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला देखना होगा, थ्योरी देखना होगा,
उसके बाद हम लोग उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय क्लास। आज का हमारा क्लास इतना ही है, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, करोगे तुम लोग, ठीक है। ओके, गुड बाय।